ہو جاؤ بچوں ریڈی، خزانہ آ گیا، اچھی پیاری باتوں کا پھر زمانہ آ گیا، ندی میں سیکھے اور دنیا کو سکھلائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں، جی ہاں، آپ کو ہمارے پروگرام اسلام فار کڈس میں شامل کرتے ہیں۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، سب سے پہلے اپنے پروگرام میں ہم سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم، فرمان آخر نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ سبحان اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم۔ ماشاء اللہ۔ پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کی ناظرین، سب سے پہلے ہم درود پاک کی فضیلت کے بعد کڈس مدنی چینل کی ناظرین سے کرتے ہیں آج کا سوال۔ جی، آج کا سوال کڈس مدنی چینل کی ناظرین کے لیے۔ آج کا سوال، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ جی، آج کا سوال، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پیدائش کس اسلامی مہینے میں ہوئی؟ آئیے بڑھتے ہیں اب نعت خوانوں کی جانب، جو میں ہم بھی سنائیں گے انشاءاللہ۔ تو آج ہمارے ساتھ ہم پڑھنے کے لیے ہیں حسن بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی، اللہ 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 اللہ، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، قلب کو اس کی رویت کی ہے آرزو، جس کا جلوہ ہے عالم میں ہر چار سو، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، بلکہ خود نفس میں ہے وہ سبحانہ، عرش پر ہے مگر، عرش پر ہے مگر، عرش کو جستجو، اللہ 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 اللہ، طائران جینا میں تیری گفتگو، طائران جینا میں تیری گفتگو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، گیت تیرے ہی گاتے ہیں وہ خوشگلو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، کوئی کہتا ہے حق، کوئی کہتا ہے ہو، اور سب کہتے ہیں، اور سب کہتے ہیں لا شریک لہ، اللہ 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 اللہ، جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، جو ہے غافل تیرے ذکر سے ذوالجلال، اس کی غفلت ہے اس پر وبال و نکال، اس کی غفلت ہے اس پر
वबालों ने कारे गफलत से हमको खुदाया ने का हम ज़ाकिर तेरे और मज़कूर तू अल्लाह 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 सुभानअल्लाह, माशाअल्लाह। ये बढ़ते हैं अपने पहले सेगमेंट की जानिब जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। नदीम सीखे और दुनिया को सिखलाए। चोर किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारा सेगमेंट इसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। इसका फॉर्मूला भी आपको जो है इंशाअल्लाह कारी साहब बताएंगे। कारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। कैसे हैं आप मुबीन भाई? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब और अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मदरसतुल मदीना ऑनलाइन। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदरसतुल मदीना ऑनलाइन जी हाँ स्टार्ट हुआ चाहता है। कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ने का वक्त हुआ चाहता है। कुरान पाक तो हर वक्त पढ़ना है, जब वो मौका मिले आपको तो कुरान पाक पढ़ते रहना है, दुहराते रहना है। जी हाँ कोशिश करना है हर नमाज के बाद थोड़ी देर बैठ जाएं और उसकी तिलावत करें। जो आपको सबक मिला हुआ है उसको दोहराएं। जब आप कुरान पाक बार बार पढ़ेंगे तो आपकी ज़बान पर कुरान पाक अच्छे अंदाज से जारी हो जाएगा। आपके पढ़ने के लिए आपको पढ़ने में आसानी हो जाएगी। आप अच्छे अंदाज से तजवीद के साथ और माहिर कारी के अंदाज में पढ़ने वाले बन जाएंगे। उसके लिए क्या करना होगा? खूब अच्छे अंदाज से तवज्जो के साथ बार बार दोहराना पड़ेगा, क्योंकि जब हम अच्छे अंदाज से बार बार दोहराएंगे पढ़ेंगे तो फिर जो है ये हरूफ जो होते हैं हमारी ज़बान पर अच्छे अंदाज से जारी होते हैं। और हम अगर चंद मरतबा दोहराएंगे तो हो सकता है वो अच्छे अंदाज से अदा ना हो। तो उसके लिए क्या करना है? बार बार प्रैक्टिस करनी है। जैसे बाज़ बच्चे क्या होता है हा की अदायगी, आइन की अदायगी सही अंदाज पे नहीं कर पाते। और इसी तरह प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जब हम सलाम करते हैं किसी को तो क्या होता है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इसमें ना सीन अच्छे अंदाज से अदा किया, ना हा की अदायगी की, तो हमने क्या करना? अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। और जवाब में भी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपसे कोई हाल पूछता है तो क्या कहना है? कैफ़ हालुकुम, या आप कैसे हैं? तो क्या जवाब देंगे? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाल बच्चे क्या देते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया भी मदनी मुज़ाकरे में हमें समझा रहे थे, तरगीब दिला रहे थे कि जब भी आपको सलाम करना हो अच्छे अंदाज से सलाम करना है। जब भी आपको अल्हम्दुलिल्लाह कहना है अच्छे अंदाज से कहना है। माशा अल्लाह कहना है अच्छे अंदाज से कहना है। कुरान पाक पढ़ना है तो वो भी अच्छे अंदाज से पढ़ना है। जी हाँ ऐसे ही नहीं पढ़ना। जी एक होता है आम तौर से पढ़ लेते हैं और एक होता है तजवीद के साथ पढ़ना। तो कुरान पाक नाजिल भी तजवीद के साथ हुआ है और हमें पढ़ना भी तजवीद के साथ ही है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तजवीद कहते हैं उम्दा करना, सुथरा करना। इसके लुग़वी माना है और इस्तिलाही माना में होता है हर हर्फ को उसके सही मखरज और तमाम सिफ़ात के साथ अदा करना। अब जैसे मिसाल के तौर पर हा का मखरज हलक का दरमियान वाला हिस्सा। अब अगर हमने हलक का दरमियान वाला हिस्सा यूज़ नहीं किया तो क्या हो जाएगा? हा से बदल जाएगा। जी गलती हो जाएगी, बड़ी गलती हो जाएगी। तो हमने हा को हा से नहीं बदलना। और इसी तरह आइन हलक के दरमियान वाले हिस्से से और जो है हमज़ा जो है हलक के नीचे वाले हिस्से से। अब अगर आइन को हमने ज़ोर नहीं दिया, उसको सही प्रेशर से मुराद ये होता है उसको थोड़ा दबाना होता है। हलक को थोड़ा आप दबाएंगे ना अपनी एक इरादे से, आइन आइन। और अगर अब ऐसे ही पढ़ देंगे बगैर दबाए तो अदा होगा आइन। तो ये क्या हमज़ा हो गया। तो हमने आइन पढ़ना है ना कि हमज़ा पढ़ना है। तो उसके लिए आपने हर हर्फ को उसके सही मखरज से अदा करना है और उसकी जो तमाम सिफ़ात होती है वो भी अदा करनी है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हम कुरान पाक रोज़ाना अगर थोड़ा थोड़ा भी सीखते रहेंगे तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, क्योंकि कुरान पाक अच्छे अंदाज से पढ़ना भी है, सीखना भी है, समझना भी है और उस पर अमल भी करना है। जी हाँ आज प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन सूरह नबा
अम्मा पारा की आखिरी सूरत उस लिहाज से कि हम जो पीछे से पढ़ रहे थे, वरना तो देखा जाए तो अम्मा पारा की ये पहली सूरत होती है। जी हाँ, वो कैसे कि जब 29 पारे ख़त्म होते हैं, जब 30वां पारा शुरू होता है तो अम्मा पारा सूरतुन नबा उसमें पहली होती है। जी हाँ, अब हमने स्टार्ट लिया छोटे बच्चों के लिए ताकि अच्छे अंदाज से आप समझने लग जाएं, तो इसलिए छोटी छोटी सूरतों को, जब छोटी छोटी सूरतों को पढ़ाया जाता है तो बच्चों को शौक़ पैदा होता है कि मैंने आज इतनी सूरत पढ़ ली, 2 पढ़ ली, 5 पढ़ ली, 10 पढ़ ली। तो जब वो आगे बढ़ता जाता है तो उसे खुशी होती है, और जब खुशी होती है तो वो और ज़ौक़ और शौक़ के साथ आगे बढ़ता चला जाता है। तो प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आज इन 3 आयतों को 28, 29, 30, 28, 29 और 30, इन 3 आयतों को तवज्जो के साथ पहले समाअत फरमाएं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अल्लाह सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं अपने अगले मरहले की जानिब, जिसका नाम है तवज्जो से समझना। जी, तवज्जो के साथ समझना है और आगे बढ़ना है। जी कारी साहब। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, तवज्जो के साथ समझना है और आगे बढ़ना है। जी हाँ, अगर तवज्जो होगी तो आगे बढ़ पाएंगे, तवज्जो नहीं होगी तो गलतियाँ करेंगे, आगे नहीं पीछे रह जाएंगे। तो हमने तवज्जो रखनी है, यहाँ मौजूद बच्चों ने भी और मदनी चैनल के नाज़रीन आपने भी, तो भरपूर तवज्जो के साथ पढ़ना है। और इससे पहले जब भी कुरान पाक शुरू करना है तो उससे पहले आपने तस्मीह भी पढ़ना है। तो मेरे साथ मिलकर पढ़िएगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़्ज़बू बिआयातिना, वकज़्ज़बू बिआयातिना। जी अनस भाई, वाव मद्दा थोड़ा खींचना है। वकज़्ज़बू, देखिए कल भी एक गलती हो रही थी ना, कानू, तो बाज़ बच्चे करते हैं। जी हाँ, गलती हो जाती है तब होती है जब तवज्जो नहीं होती। तो आपने खींचना है, एक अलिफ वाव मद्दा है। वकज़्ज़बू बिआयातिना, वकज़्ज़बू बिआयातिना। माशाअल्लाह, वाव पर ज़बर है, वाव की अदायगी होंठों की गोलाई से और एक तशदीद भी नजर आ रही है। जी हाँ, अगर हम पिछली आयत से मिलाकर पढ़ते तो कायदा हो जाता। माशाअल्लाह, दानियाल भाई ने बता दिया, इदगाम माल गुन्ना हो जाता। बिल्कुल सही जवाब दिया। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फ़े अरमलून से कोई हर्फ आता है तो वहाँ इदगाम होता है। या, वाव, मीम, नून, इन 4 उर्फ में इदगाम माल गुन्ना, गुन्ने के साथ इदगाम, और लाम और रा में बगैर गुन्ने के इदगाम होता है। तो दानियाल भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों, काफ की अदायगी बारीक रखनी है। काफ, जी, एक काफ होता है किताब वाला काफ, अब ये वही कि काफ है, तो इसको हमने बारीक रखना है। और एक निचली आयत, आखिरी आयत में आएगा फज़ूक़ू। जी हाँ, ये काफ मोटा काफ, इस काफ को हमने मोटा रखना है। जी, कलम वाला काफ, तो कलम वाला काफ हमेशा जो नुक्तों वाला काफ होता है ये मोटा अदा करते हैं, और जो ये काफ होता है किताब वाला, डंडी वाला, जी हाँ, तो इसको हमेशा बारीक पढ़ते हैं। इसको हमने बारीक रखना है, मोटा नहीं करना। और ज़ाल की अदायगी क्लियर रखनी है, क्योंकि ज़ाल कौन से उरूफ में से है? जी, थोड़ा मुश्किल है। सा, ज़ाल, वा, तीनों हरूफ एक जगह से अदा होते हैं। याद आ गया है दानियाल भाई को भी, अनस भाई को भी, और हमारे हसन भाई को भी। तो हमारे, जी आपका नाम? मशहद रज़ा तारी। जी, मशहद रज़ा तारी। मशहद रज़ा भाई। जी मशहद रज़ा भाई, आप बताइए। उरूफ़ लसविया। उर्फ़ लिसविया में से हैं। जी हाँ, उर्फ़ लिसविया कितने हैं? कौन कौन से? सा से शुरू कर, सा, ज़ाल, वा। सा पहले आता है, इसे सा,
پھر زال آتا ہے، پھر وا آتا ہے، تینوں حروف ترتیب کے ساتھ، سا زال وا۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ان تینوں حروف کو ادا کرتے وقت زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے کناروں سے ادا کرتے ہیں، وَكَذَّبُوا، وَكَذَّبُوا، اسی طرح سا زال اور وا۔ جی ہاں ماشاءاللہ، اور زال کو زا سے نہیں بدلنا، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ اور پیارے بچوں واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آ جائے، واو مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرتے ہیں، تو اس کو ہم نے کھینچنا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا۔ جی پیارے بچوں، با کے نیچے زیر ہے، بغیر کھینچے ادا کرنا ہے، مگر آپ دیکھیے اس الف کے اوپر اور اس یا کے اوپر کھڑا کھڑا زبر ہے، اس پر بھی کھڑا زبر، اس پر بھی کھڑا زبر، دونوں کو کیا کرنا ہے، ایک ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا کون بتائے گا کہ یہ الف ہے یا کوئی اور حرف بن گیا؟ حمزہ، جی انس بھائی، جی انس بھائی بتائیے۔ حمزہ، حمزہ بن گیا، کیسے؟ الف، اگر الف خالی ہو تو الف پڑھا جائے گا، الف کے اوپر کوئی بھی جزم، حرکات یا کوئی بھی کھڑی حرکات جو بھی آ جائے تو اس کو حمزہ پڑھا جائے گا۔ ماشاءاللہ، جی ہاں، جب الف خالی ہوتا ہے تو وہ الف ہوتا ہے جیسے نا کا الف۔ دیکھیے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے نام، نون الف زبر نا، اس پر کوئی بھی حرکت نہیں ہے اور اس الف کے اوپر کھڑا زبر ہے۔ جب کبھی الف کے اوپر زبر زیر پیش آ جائے، دو زبر دو زیر دو پیش آ جائے یا جزم آ جائے تو وہ الف نہیں بلکہ حمزہ بن جاتا ہے، اور الف ہمیشہ خالی ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی ایک سوال پوچھا جاتا ہے کہ الف کو الف کب پڑھتے ہیں؟ تو یہ یاد رکھیں، الف کو الف اسی وقت پڑھتے ہیں جب اس پر کوئی بھی حرکت نہ ہو، کوئی بھی تنوین نہ ہو، کھڑی حرکات نہ ہو، اس پر جسم نہ ہو تو وہ الف ہوتا ہے۔ اور الف کو حمزہ کب پڑھتے ہیں؟ تو الف کو حمزہ تبھی پڑھتے ہیں جب اس پر حرکات آ جائیں، تنوین آ جائے، کھڑی حرکات آ جائیں یا جسم کی علامت آ جائے تو وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اور پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، دونوں کو ایک ایک الف کھینچنا ہے، یا کھڑا زبر یا۔ اب دونوں کو بی آ یا، تو بعض بچے کیا ہوتے ہیں، ایک کو کھینچ دیتے ہیں ایک کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ہم نے کیا کرنا ہے، دونوں کو کھینچنا ہے، اور تا کے نیچے زیر ہے، اس کو بغیر کھینچے ادا کرنا۔ نون الف زبر نا، عرف مدہ ہے، کون سا مدہ ہے؟ الف مدہ ہے، واو مدہ ہے، یا مدہ ہے؟ دانیال بھائی جی جی سب مل کر بولے کون سا ہے؟ الف مدہ، یاد ہونا چاہیے یہ کون سا مدہ تھا؟ واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش آیا، واو مدہ، الف سے پہلے زبر آ گیا، الف مدہ ہو گیا، اور یا مدہ بھی آگے آئے گا تو ہم وہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ جی تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مل کر پڑھنا ہے، بی آیاتنا کذابا۔ کاف کو باریک رکھنا ہے، زال کی ادائیگی ویسے ہی جیسے پہلے زال کی ادائیگی ہوئی تھی، زال الف زبر زا، الف مدہ۔ جی یہاں پر الف مدہ نہیں تھا، یہاں پر کیا تھا، صرف حرکت تھی۔ دانیال بھائی بتائیں گے اس زال میں اور اس زال میں ہمارا کیا فرق رہے گا، کہ ہم نے اس کو کھینچنا ہے یا اس کو کھینچنا ہے، کیا کرنا ہے؟ جی دانیال بھائی بتائیں گے، ذہن میں دونوں کو کھینچنا، یہ غلط ہو جائے گا۔ انس بھائی بتائیں گے، انس بھائی کذابا کو کھینچنا ہے، کذابا پڑھیں گے یا کذابا پڑھیں گے؟ کذابا پڑھیں گے۔ جی ہاں کذابا پڑھیں گے، ماشاءاللہ۔ الف مدہ ہمیشہ کھینچ کر ادا کرتے ہیں اور حرکات کو بغیر کھینچے، یہاں وَكَذَّبُوا اور یہاں کذابا۔ جی ہاں آپ دیکھیں وَكَذَّ، ہم نے شروع میں کیا پڑھا، وَكَذَّ، زال کو نہیں کھینچا کیونکہ حرکت ہے، اور یہاں زال الف زبر زا الف مدہ بن گیا کذا۔ جی کچھ سوال کرنا چاہ رہے دانیال بھائی، جی پوچھیں۔ نیچے یا مدار ہے، اچھا نیچے یا مدہ آ رہا ہے، ماشاءاللہ۔ جب ہم یا مدہ پر پہنچیں گے تو انشاءاللہ وہاں پر وہ بھی آپ سے پوچھیں گے۔ تو یہاں آپ نے مل کر آواز سے دو زبر کی تنوین کو کیا کرنا ہے، الف سے بدلنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں، ماشاءاللہ۔ ایک آواز کے ساتھ پوری آیت کو پڑھنا ہے، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا۔ وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذَّابًا۔ ماشاءاللہ۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا۔
काफ को बारीक रखना है अनस भाई, मोटा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ से समझते हैं, वाव पर जबर है, वाव को बगैर खींचे अदा करेंगे, मगर वाव कैसे अदा होता है ये सब मिलकर बोलेंगे। वाव कहाँ से अदा होता है? होठों की गोलाई से। जब तक होंठ गोल नहीं होंगे वाव अदा नहीं होता, इसका खास ख्याल रखना है। काफ पर पेश है, काफ को बारीक रखना है और पेश को हमेशा होंठ गोल करके अदा करेंगे। जी हाँ, और मुशद्दद हर्फ ये कौन बताएगा? मुशद्दद हर्फ तशदीद वाला हर्फ आ जाए तो उसको कैसे अदा करते हैं, कौन बताएगा? जमाओ के साथ। जी, जमाओ के साथ रुक कर हमेशा तशदीद वाला हर्फ 2 मरतबा पढ़ा जाता है। कितनी मरतबा पढ़ते हैं? 2 मरतबा। एक मरतबा अपने से पहले वाली हरकत, अपने से पहले वाले हर्फ से मिलकर, और दूसरी मरतबा अपनी हरकत के मुताबिक। ठीक है, तो पढ़ेंगे वकुल्ल, मगर इसकी जबर हमने खींचना नहीं है। वकुल्ल शैइन, शीन, शीन कौन से हरूफ में से है? जी ये तो शजरिया। जी हुरूफ शजरिया में से है। जवाब बिल्कुल दुरुस्त आ गया है। और शीन को हमेशा हमेशा मुंह में आवाज फैल कर अदा होता है, शीन। जी हाँ, तो एक सिफत आती है, सिफत का नाम क्या है? तफशी। जी माशाल्लाह, शजरिया तो ये मखरज के लिहाज से हुरूफ होते हैं, और सिफत जो है तफशी होती है। तफशी यानी मुंह में आवाज फैल जाना। अच्छा, इसका मखरज कौन बताएगा? मखरज कौन बताएगा? हुरूफ शजरिया तो है, मगर अदा कैसे होते हैं? ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से। माशाअल्लाह, अनस भाई ने बहुत क्विक जवाब दे दिया है और जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया है। जी हाँ, वस्ते ज़बान, ज़बान का दरमियानी हिस्सा और तालु का दरमियानी हिस्सा जब मिलते हैं तो अदा होते हैं जीम, शीन और या। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, और यहाँ या साकिन से पहले जबर है, कायदा है, इस कायदा है, या मद्दा है या लीन है? या लीन है, सोच लें, या मद्दा ना हो। ये यालीन है पक्का? जी अनस भाई क्या कह रहे हैं? यालीन है। अगर हम हसन भाई से पूछें तो हसन भाई क्या कहते हैं? यालीन है। चले, माशाअल्लाह, आप लोगों ने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, यालीन है। और यालीन को कैसे पढ़ते हैं ये भी तो बताएं, कि इसको खींच कर पढ़ते हैं बगैर खींचे या नरमी से पढ़ते हैं? नरमी से, बगैर झटका दिए नरमी से। माशाअल्लाह, बगैर खींचे बगैर झटका दिए नरमी से पढ़ते हैं। आपने जवाब बिल्कुल दुरुस्त दिया। और प्यारे बच्चों, यहाँ हमजा को खूब वाज़े करना है और एक कायदा है, जिससे पूछा जाए वो बताएगा, बोलेंगे नहीं। कायदा याद करें कि कौन सा है। फिर आगे भी, यहाँ भी हमजा है, यहाँ भी हमजा है, 2 हमजा आ रहे हैं। कायदा किस तरह याद करके बताएंगे, कौन बताएगा? जी हमारे अब्दुल समद भाई बताना चाह रहे हैं। अब्दुल समद भाई बताइए। इजहार का कायदा हो रहा है। इजहार का कायदा है। इजहार का कायदा कैसे हुआ? यार मालूम। दो ज़ेर की तनवीन के बाद उर्फ हल्की में से हमजा आ रहा है। उर्फ लीन में से, उर्फ हल्की में से। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब्दुल समद भाई का जवाब बिल्कुल दुरुस्त है, माशाअल्लाह। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, याद रखिए, जब कभी नून साकिन या तनवीन के बाद उर्फ हल्की में से कोई हर्फ आ जाए तो वहाँ पर क्या होता है? इजहार होता है। इसको कहते हैं इजहार हल्की, यानी इजहार से मुराद होता है नून को जाहिर करके पढ़ते हैं, गुन्ना नहीं करते। तो यहाँ भी पढ़ेंगे शैइन अहसैनाहु। अच्छा, इनको फिर झटका, हमजा को तो झटके से अदा करेंगे, नून में झटका या कलकला ना हो जाए। शैइन, नून हिल जाएगा तो क्या हो जाएगा? कलकला हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो हमने शैइन के नून को नहीं हिलाना। शैइन अहसैनाहु, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हमजा को खूब वाज़े करेंगे, झटके से अदा करना है। और हा की अदायगी, जिससे पूछा जाए हलक के नीचे वाले हिस्से से या ऊपर वाले हिस्से से। जी आप बताइए, आपका नाम क्या है? नाम बताएं। सैयद हाशिर। सैयद आशिर, हाशिर या आशिर? हाशिर। हाशिर। जी सैयद हाशिर भाई बताइए, हा कहाँ से अदा होता है? हलक के दरमियान से। हलक के दरमियान से। जवाब सैयद हाशिर ने बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हा को हा से नहीं बदलना, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है। और सौद को पुर भी पढ़ना है या
एक्स्ट्रा मोटा पढ़ना है। मोटा तो पढ़ना है मगर एक्स्ट्रा मोटा पढ़ना है, क्योंकि एक सिफत ऐसी होती है जो एक्स्ट्रा मोटे हुए बगैर ये अदा नहीं होगा। क्योंकि मुस्तालिया अदा कर लिया हमने, सौत पढ़ लिया, मगर हमने सौत एक्स्ट्रा मोटा नहीं किया, तो ये भी गलती है और बड़ी गलती है। इस चीज का खास ख्याल रखना है। और या साकिन से पहले जबर आ गया तो क्या हो गया? यालीन हो गया। माशाल्लाह, आपका जवाब दुरुस्त है। खड़ी हरकत को कितना खींचना है? एक अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर। हाँ, खड़ी हरकत को एक अलिफ यानी 2 हरकत की मिकदार खींच कर पढ़ते हैं और हा पर पेश है, इसको बगैर खींचे अदा करेंगे। माशाल्लाह। और यहाँ पर किताबा अहसैनाहु किताबा, काफ को बारीक रखना है, काफ के नीचे जेर बगैर खींचे और ता पर खड़ा जबर है। खड़े जबर को एक अलिफ खींच कर अदा करना है, एक अलिफ लंबा करना है। और 2 जबर की तनवीन को क्या करेंगे प्यारे बच्चों और मदनी चल के अलिफ से बदल देंगे। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। और इसको क्या कहते हैं? जी हाँ, वक़्फ़ बिल इब्दाल माल अलिफ कहते हैं। जवाब दुरुस्त है। अब पूरी आयत को मिलकर पढ़ना है। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा, वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताइए कि अगर यहाँ मिलाकर पढ़ते हैं, ला लिखा हुआ है ना आयत पर, ला है तो मिला भी सकते हैं और मिलाना भी सही है इसका। तो यहाँ जब मिलाएंगे तो कौन सा कायदा लगेगा? जिससे पूछा जाए। आवाज़ तो आ गई है, अनस भाई ने जवाब दे दिया है। और अनस भाई जो कह रहे हैं, दानियाल भाई भी तायद कर रहे हैं उसकी। जी हाँ, माशाल्लाह, बिल्कुल इख्फा का कायदा लग गया है। इख्फा का कायदा क्यों लगा, कौन बताएगा? ये अनस भाई बताएंगे या हसन भाई से पूछते हैं? हसन भाई क्यों हुआ? नून साकिन के बाद हुरूफ इख्फा में से फा आ गया। जी हाँ, नून साकिन कहाँ है? यहाँ तो हमें नून साकिन नजर नहीं आ रहा। किताबन 2 तनवीन, 2 जबर, 2 जबर की तनवीन है और तनवीन भी नून साकिन ही होता है। जी हाँ प्यारे बच्चों, याद रखिए 2 जबर तनवीन या 2 जेर की तनवीन या 2 पेश की तनवीन, याद रखें नून साकिन या तनवीन। तनवीन कहते हैं, तनवीन भी नून साकिन ही होता है। जी हाँ। और ये लिखने में जो होता है, बज़ाहिर तो ऐसे लिखा हुआ होता है, 2 जबर या 2 जेर या 2 पेश, मगर इसको पढ़ेंगे तो बा नून जबर बन, या अगर यहाँ पर होता बा 2 पेश बुन तो क्या बन जाता? बा नून पेश बुन। अगर 2 जेर होती तो बा नून जेर बिन। आवाज़ जो है, साउंड जो है, 2 जबर की तनवीन हो या 2 जेर की तनवीन हो या 2 पेश की तनवीन हो, उसकी साउंड नून साकिन की ही तरह होती है, एक ही चीज़ होती है। जी हाँ, मगर लिखने में थोड़ा सा मुख्तलिफ होता है। तो प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, यहाँ आपने बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। मिलाकर पढ़ने की सूरत में इख्फा का कायदा होगा, यानी छुपाएंगे नून गुन्ना करके पढ़ेंगे और नून को छुपाना होगा। माशाअल्लाह। फज़ूक़ू, फा की अदायगी क्लियर रखनी है, फा पर जबर है। जाल की अदायगी भी क्लियर करनी है। वाव साकिन से पहले पेश आ जाए तो क्या होता है? वाव मद्दा। मिलकर बोले क्या होता है? माशाअल्लाह। और जाल को दुरुस्त भी रखना है, जाल को जा से नहीं बदलना। तो और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, काफ को पुर रखना है। ये काफ है। पहले क्या आ रहे थे? वकुल्ला में भी काफ, वकज़्ज़बू में भी काफ, किज़्ज़ाबन में काफ, किताबन में काफ, और यहाँ आया है काफ। तो इसको क्या करना है? मोटा पढ़ना है। एक्स्ट्रा मोटा तो नहीं करना ना? नहीं, एक्स्ट्रा मोटा नहीं करेंगे, इससे मोटा। अच्छा, बाज़ बच्चे बड़े पढ़ते हैं कौफ, कौफ इतना मोटा कर देते, इतना मोटा भी नहीं करना, मोटा करना है। कौफ क्या पढ़ना है? कौफ। जी हाँ। फज़ूक़ू, वाव साकिन से पहले पेश आया क्या होता है? वाव मद्दा। जी, यहाँ पर एक वाव मद्दा है या 2 वाव मद्दा है। फज़ू और कू दोनों को एक एक अलिफ खींच कर अदा करना है। फलन नज़ीदकुम, जी अनस भाई की जा कमज़ोर हो गई, थोड़ा जाल की तरफ चली गई। फिर आवाज़ अच्छे तरीके से पढ़ना है। फलन नज़ीदकुम, क्योंकि मन जद्दा,
जो कोशिश करता है वो पा लेता है। और जो कोशिश नहीं करेगा वो कभी भी पा नहीं सकता। तो हमें कोशिश जारी रखनी है, अच्छे अंदाज से पढ़ना है और इसी तरह आगे बढ़ना है। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, फा पर ज़बर है, बगैर खींचे अदा करना है। और यहाँ एक कायदा है, जिससे पूछा जाए वो बताएगा। कौन बताएंगे? जी अब्दुल समद भाई और अनस भाई टीम बी से 2 हाथ खड़े हैं और टीम ए से अभी तक सोच रहे हैं। तो टीम बी वालों से हम पूछ लेते हैं। टीम ए से भी याद आ रहा है, जहन में नहीं आ रहा। जी अब्दुल समद भाई बताइए, अब्दुल समद भाई बताइए। इदगाम माल गुन्ना। इदगाम माल गुन्ना, आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। दुरुस्त मान लें। जी दुरुस्त है। कैसे हो? नून साकिन तनवीन के बाद हर्फ अल में नून से कोई हर्फ आ रहा है। अच्छा, या नून साकिन या तनवीन है, ये बताइए। नून साकिन है। नून साकिन है, उसके बाद कौन सा हर्फ है? हर्फ अल में नून से नून है। माशाअल्लाह, अनस भाई ने भी बिल्कुल सही वजाहत की और अब्दुल समद भाई ने भी बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है। माशाअल्लाह। जी हाँ, यहाँ पर प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, इदगाम माल गुन्ना होगा। एक अलिफ का गुन्ना भी करना है, मिलाकर पढ़ना है और जा की अदायगी अनस भाई अच्छे अंदाज से अदा करनी है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, आपने भी अच्छे अंदाज से जा पढ़ना है, सीटी के साथ। जा जा। जी हाँ, बाज़ बच्चे या बड़े कहते हैं क्या पढ़ते हैं? ज़ नहीं पढ़ना, जा क्या पढ़ना है? जा। अच्छा, बाज़ इसको जो है जा को जीम जैसा भी पढ़ देते हैं। जी हाँ, तो इस चीज़ का भी नहीं। फलन नजीदकुम, फलन नजीदकुम नहीं, फलन नजीदकुम। क्या पढ़ेंगे? फलन नज़ीदकुम, फलन नजीदकुम। फलन नज़ीदकुम। माशाअल्लाह, सीटी के साथ अदा करना है। और सीटी वाले हुरूफ कितने हैं? 3। उनका मखरज क्या है? मखरज के लिहाज से क्या कहलाते हैं? हर्फ असलिया। हुरूफ असलिया कहते हैं। वो कौन कौन से हर्फ हैं? जा, सीन, सॉद। जा, सीन, सॉद। बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया है, माशाअल्लाह। या साकिन से पहले जेर आने की वजह से या मद्दा। अनस भाई ने बहुत जल्दी की और दानियाल भाई ने इसका जवाब पहले दे दिया था। माशाअल्लाह, दानियाल भाई को पहले से याद था कि यहाँ या साकिन से पहले जेर आ रहा है। तो या मद्दा या यालीन सोच रहे हैं? दानियाल भाई सोच रहे हैं, हो सकता है यालीन हो। या मद्दा है। या मद्दा क्यों हुआ ये बताएं अब। या है और उससे पहले जेर आ रहा है। अच्छा, या सिर्फ हो या साकिन हो, ये बताएं। साकिन से पहले जेर आ रहा है। जी हाँ, या साकिन उससे पहले जेर आ जाए या मद्दा होता है और या साकिन से पहले जबर आ जाए या लीन होता है। या लीन, हुर्फे लीन को नरमी से अदा करते हैं, हुर्फे मद्दा को एक अलिफ खींच कर अदा करते हैं। माशाअल्लाह। और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, दाल को खूब अच्छे तरीके से अदा करना है। दाल, ये कौन से हुरूफ में से है? दाल 3 हुरूफ, ता दाल तो, ता दाल तो। हुरूफे नितइया कहते हैं। क्या कहते हैं? नितइया। बहुत मुश्किल नाम है ना। कायदे के शुरू में पहले सफ़े पे ये सारे हुरूफ नाम लिखे हुए हैं। जी हाँ, जो बच्चे कायदा पढ़ते हैं तो वो पहले पढ़ते रहते हैं, याद भी करते रहते हैं और कई बच्चों को याद हो जाते हैं। तो दोहराते रहेंगे तो हमें याद हो जाएंगे। हुरूफे नितइया कितने हैं? कौन कौन से? ता दाल तो। माशाअल्लाह, जवाब बिल्कुल दुरुस्त दे दिया है। काफ को बारीक रखना है और मीम साकिन के कायदों में से कायदा, जिससे पूछा जाए वो बताए। तो हम टीम ए से देख रहे हैं कौन हाथ खड़ा करता है, सोच रहे हैं जी, आपस में सोच रहे हैं, मशवरा कर रहे हैं। या तो टीम बी से अनस भाई हाथ खड़े किए हुए। जी अनस भाई बताइए कौन सा कायदा है? इजहार। इजहार, कौन सा इजहार? शफवी। माशाअल्लाह, आधा जवाब टीम बी ने और आधा जवाब टीम ए ने मुकम्मल कर दिया है। अनस भाई ने कहा इजहार और दानियाल भाई ने कह दिया इजहार शफवी और बिल्कुल जवाब दुरुस्त दे दिया है। इजहार भी है, ये भी जवाब दुरुस्त है, मगर क्लियर हुआ इजहार शफवी से। जब मीम साकिन के कायदे आते हैं तो मीम साकिन के कायदों का नाम लेने हैं, इजहार शफवी। और यहाँ क्या करेंगे? गुन्ना करेंगे कि नहीं? दानियाल भाई नहीं करेंगे। माशाअल्लाह, बिल्कुल जवाब दुरुस्त दिया, गुन्ना नहीं करेंगे। और इल्ला अज़ाबा, हमजा को, इल्ला के हमजा को हमने खूब वाज़े करना है। लाम अलिफ ज़बर ला, एक अलिफ। जी बताएं, ये हुर्फ़े मद्दा कहाँ है? हुर्फ़े मद्दा है? नहीं है। मद्दा है। आप सोचे पहले। अलिफ मद्दा है? कैसे है अलिफ मद्दा, ये मुझे बताएं, समझाएं।
ये समझाएंगे जी, दानियाल में समझाएं। अलिफ के बाद जबर आ रहा है, अलिफ के बाद आ रहा है, अलिफ से ये एक अलिफ ये है, हाँ इससे पहले आ रहा है। नहीं, दो अलिफ है, आपने सही कहा कि दो अलिफ है ना, एक अलिफ इसके बाद जबर आ रहा है, एक इससे पहले जबर अब इस अलिफ के बाद जबर जो आ रहा है वाला अलिफ है वो उसका मद्दा है, उसके वजह से मद्दा हुआ। जी हाँ प्यारे बच्चे और मदनी चैनल के नाज़रीन, ये मद्दा हुआ इस अलिफ की वजह से कि लाम अलिफ ज़बर ला। हम पहले वाले अलिफ को नहीं देखेंगे क्योंकि अलिफ से पहले ज़बर आए तो अलिफ मद्दा होता है, और अलिफ से पहले जी ज़बर से पहले, अगर ज़बर से पहले अलिफ आ जाए तो आप उसको नहीं देखेंगे, उसका कायदा कुछ और होगा। मगर यहाँ क्या है, अलिफ से पहले ज़बर आ गया तो बन गया अलिफ मद्दा। जैसे यहाँ किज़ाबा में अलिफ से पहले ज़बर था, अभी आयातिना में अलिफ से पहले ज़बर था, तो इस वजह से यहाँ पर भी अलिफ से पहले ज़बर है, तो इल्ला एक अलिफ खींचना है। आइन की अदायगी क्लियर रखनी है, आइन और हमज़ा में वाज़ेह फ़र्क करना है। आइन कहाँ से अदा होता है जिससे पूछा जाए जी, आप बताना चाहेंगे? सारे दानियाल भाई बताएंगे, कोई और भी तो बताए ना जी, आप बताइए। हलक के नीचे वाले हिस्से से अदा, गौर कर लें, हलक के ऊपर वाले ये हिस्से। सही है, अलग के नीचे वाले से है, दानियाल भाई सही कह रहे के हैं, नीचे वाले से, मगर आपका भी जवाब गलत है और उनका भी जवाब। दरमियान वाले हिस्से से, जी हाँ, आइन हमेशा हलक के दरमियान वाले हिस्से से। देखें, अगर तवज्जो नहीं होगी तो कहते हैं तवज्जो के साथ समझना है। अगर आप मौजूद होंगे हमारे पास, हमारे कैमरा मैन भी माशाल्लाह बता रहे थे और जवाब दे रहे थे हलक के दरमियान वाले हिस्से से। जी हाँ, वो भी कोशिश करते हैं और मदनी चैनल के नाज़रीन हर एक ने कोशिश करनी है। कुरान पाक तो हर एक ने सीखना है, यहाँ मौजूद बच्चों ने भी सीखना है और मदनी चैनल पर जो देख रहे हैं उन्होंने भी सीखना है, और यहाँ मौजूद जो कैमरा मैन है वो भी अगर कोशिश करते रहेंगे तो एक वक्त आएगा वो भी अच्छा पढ़ने वाले बन जाएंगे। हम उनसे सुन नहीं सकते, मगर जी हाँ वो कोशिश जारी रखें, आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहें। जब आहिस्ता आहिस्ता दोहराते रहेंगे तो एक वक्त आएगा उनके भी हुरूफ दुरुस्त हो जाएंगे, उनको भी मखारिज का पता चल जाएगा, कौन सा हर्फ कहाँ से अदा होता है, किस तरह अदा करना है, आइन की अदायगी कैसे होती है। क्योंकि ये भी माशाल्लाह कैमरा मैन भी कहीं मदरसतुल मदीना बालगान में भी पढ़ते होंगे और हम इन्हें दावत भी देते हैं, कोशिश किया करें, करना चाहिए। जी हाँ, और प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, हमने कुरान पाक अच्छे अंदाज से सीखना है, पढ़ना है, समझना है। और दाल अलिफ ज़बर ज़ा, उर्फ़े मद्दा आ गया माशाल्लाह। और दो ज़बर की तनवीन को अलिफ से बदल देंगे, इसका नाम बताएं। माशाल्लाह, आहिस्ता आहिस्ता। हो सकता है आपने इतनी स्पीड से कहा मदनी चैनल के नाज़रीन समझ ही ना पाए हो, तो आहिस्ता के वक़्त बिल इब्दाल माल अलिफ। माशाल्लाह, पूरी आयत को एक मरतबा अच्छे अंदाज से, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फ़ज़ूक़ू नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। जी अनस भाई देखिए, तवज्जो अगर नहीं होगी तो गलतियाँ होंगी। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा, फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। अच्छा अनस भाई, इल्ला में आपसे हमज़ा की बजाय आइन अदा हो गया। जी बाज़ मरतबा ऐसा होता है आइन ज़्यादा अदा करना सीख जाते हैं तो फिर हमज़ा भी आइन में तब्दील हो जाता है। ये भी नहीं करना, आइन की अदायगी को दुरुस्त करनी है और हमज़ा की अदायगी भी दुरुस्त करनी है। प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है आपने अच्छे अंदाज से समझने की कोशिश की होगी। माशा अल्लाह माशा अल्लाह माशा अल्लाह। आइए अपने प्रोग्राम में कुछ कॉल शामिल करते हैं। मेरा नाम कनीज़ा फातिमा है, मेरा चाचा कारी साहब कैसे आप? मैं आज खाने की बात की दुआ सुनाऊंगी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। माशा अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारी बच्ची, मैं अच्छा हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। अच्छा, आपने ये दुआ सुनाई खाने के बाद की, तो इसमें भी आपने हा की अदायगी अच्छे अंदाज से करनी है। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व जअलना मुस्लिमीन। हुरूफ को अच्छे अंदाज से, तौ को मोटा करना है। जी हाँ, अच्छी कोशिश की और अच्छे अंदाज से कोशिश जारी रखें। माशा अल्लाह। नेक्स्ट कॉल। फातिमा तारिया मिन जनाबा से मैं आज नादल गाऊंगी। सुल्तान विलाया
शफात गौ से पाक, वलियों पे हुकूमत गौ से पाक, हो मेरी शफात गौ से पाक, हो तेरी ज़ियारत गौ से पाक, जिन्नों पे हुकूमत गौ से पाक, हो मेरी शफात गौ से पाक, अल मदद या गौ से पाक, अल मदद या गौ से आज़म, अल मदद या गौस आज़म। अल मदद या गौस पाक। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नेक्स्ट कॉल। मैं साथ तारिया डिस्कस कर रही हूँ। आज के सवाल का जवाब ये है कि गौसे आज़म की विलादत रमज़ानुल मुबारक के महीने में हुई। माशाअल्लाह। रमज़ान मुबारक के महीने में आपने जवाब दिया कि गौसे पाक रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत हुई और आपका जवाब दुरुस्त है। नेक्स्ट कॉल। मेरा नाम सैयद सैद है, मैं गाजी खान से बात कर रहा हूँ। माशाअल्लाह। आपके सवाल का जवाब है रमजान में मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। प्यारे बड़े बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं कारी साहब की जानिब और हमारा ये मरहला इसका नाम है तवज्जो से पढ़ना। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अब तवज्जो के साथ इन आयात को पढ़ना है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। माशाअल्लाह। जी हाँ, अब मरहला है सुनाने का। जी दानियाल भाई से हम सुन लेते हैं पहली आयत। जी दानियाल भाई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। अच्छा, आपने दोनों काफ मोटे कर दिए और वकज़्ज़बू वाव मद्दा को आपने छोड़ दिया। जी एक लिख खींचना है, काफ बारी रखें। वकज़्ज़बू वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। किज़्ज़ाबा। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छे अंदाज से कोशिश जारी रखनी है। दूसरी आयत अनस भाई पढ़ेंगे। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। जी माशाअल्लाह। जी तो हम तीसरी आयत। जी अब्दुल समद भाई जल्दी से पढ़ दें तीसरी आयत। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम वाव मुद्दा खींचना है। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। जी फलन नज़ीदकुम में ज़ा की अदायगी के लिए रखिए। अब हम पढ़ते हैं, बढ़ते हैं हदर और तरतील की तरफ। मिलकर मेरे साथ बड़े बच्चे पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकज़्ज़बू बिआयातिना किज़्ज़ाबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। वकुल्ल शैइन अहसैनाहु किताबा। फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। फ़ज़ूक़ू फ़लन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। माशाअल्लाह। अब
آپ پڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا. وكذبوا بآياتنا كذابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا. وكل شيء أحصيناه كتابا وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا فَذُوقُوا فَلَن نَّزِيدَكُمْ إِلَّا عَذَابًا. وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. فذوقوا ذال کی ادائیگی دوبارہ یہاں سے فذوقوا سے. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. اللہ ماشاءاللہ. اچھی کوشش، غلطیاں ہو جاتی ہیں مگر درست کرنا ہے، اچھے انداز سے پڑھنا ہے. زا کی ادائیگی، ذال کی ادائیگی کلیئر رکھنی ہے. ماشاءاللہ. ماشاء اللہ. پیارے میرے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب جس کا نام ہے بچوں کی محفل. ندیم سیکھے اور دنیا کو سکھلائے. جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پروگرام جس کا نام ہے اسلام فار کڈس اور جس سیگمنٹ کا نام ہے بچوں کی. جی ہاں، سب سے پہلے آئیے بڑھتے ہیں کنال خانوں کی جانب. وہ پوچھتے ہیں کہ آج وہ کون سے کلام کی تیاری کر رہے ہیں. جی آپ بتائیے، آپ کا نام کیا ہے؟ سید حاشر. حاشر بھائی. جی حاشر بھائی، کون سے کلام کی تیاری کر رہے ہیں؟ جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور ضرور جانتے ہیں. جانتے ہیں. جی حسن بھائی. بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا. ماشاء اللہ. جی مشہد بھائی. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. ماشاء اللہ. عبدالصمد بھائی. مرحبا آج چلیں گے شہ ابرار کے پاس. ماشاء اللہ. آئیے بڑھتے ہیں مشہد بھائی کی جانب. جی مشہد بھائی. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. آپ نے گئے نہ سنبھالا تو کدھر جاؤں گا. اتنا مانو سے وہ آقا، میں تیرے قدموں سے اتنا مانو سے وہ آقا، میں تیرے قدموں سے تیرے قدموں سے مجھ کو قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں
قدموں سے کیا دور تو مر جاؤں گا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا عادت نعت بہانا ہے میری بخشش کا میری بخشش کا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا نعت پڑھتے ہوئے میں پل سے گزر جاؤں گا اس سے بڑھ گئے کوئی اور زیاد لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا لوگ تیرا ہی کہیں گے میں جدھر جاؤں گا حشر میں خود کو جو دیکھوں گا بکھر جاؤں گا اپنے گئے نہ سنبھالا تو کدھر سبحان اللہ ماشاء اللہ آئیے بڑھتے ہیں سید حاشر بھائی کی جانب جی حاشر بھائی جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے ہیں جو ہو چکا ہے جو ہوگا حضور جانتے
सुभान अल्लाह, माशा अल्लाह, माशा अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हम अब्दुस्समद भाई की तरफ। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व बारिक वसल्लम। मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास, मरहबा आज चलेंगे शह अबरार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता, मैं गुनाहगार गुनाहों के सिवा क्या लाता। नेकियां होती है सरकार नेकोकार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। है मदीने में शहादत का ये मंगता मौला, है मदीने में शहादत का ये मंगता मौला, है मदीने में शहादत का ये मंगता मौला। एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, एक भिखारी है खड़ा आपके दरबार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास। मुजरिमों इतना भी घबराओ न महशर में तुम, मुजरिमों इतना भी घबराओ न महशर में तुम, मुजरिमों इतना भी घबराओ न महशर में तुम। मिलके चलते हैं सभी अपने मददगार के पास, मिलके चलते हैं सभी अपने मददगार के पास, इंशाअल्लाह पहुँच जाएंगे सरकार के पास।
माशाअल्लाह। आइए बढ़ते हैं हसन भाई जानिब। हसन भाई, हमारे प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म पहुँच रहा है, तो आप जो है एक दो शेर सुना दें। बंदा मिलने को करीबे हज़रते कादिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया, लम्हाए बातिन में गुमने जलवाए ज़ाहिर गया, तेरी मर्ज़ी पा 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 गया, सूरज फिरा उल्टे कदम, तेरी उंगली उठ गई महका कलेजा चिर गया, अल्लाह 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 अल्लाह। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशीर, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामशीर, जिससे सत्तर साहिबों का दूध से मुँह फिर गया, अल्लाह 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 अल्लाह। ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे, ठोकरें खाते फिरोगे उनके दर पर पड़ रहो। काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया, काफिला तो ए रज़ा अव्वल गया आखिर गया, अल्लाह 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 अल्लाह। वो के उस दर का हुआ बल्कि खुदा उसकी हुई, वो के उस दर से फिरा अल्लाह से वो फिर गया, अल्लाह 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 अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। इसी के साथ ही हमारे प्रोग्राम इस्लाम फॉर किड्स का इख्तिताम पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नए एपिसोड में। हमें तो आमद रखिएगा, अपना खास का ख्याल रखिएगा। सल्लल्लाहु अलैहि हबीब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हो जाओ बच्चों रेडी, खजाना आ गया, अच्छी प्यारी बातों का फिर जमाना आ गया, नदी में सीखे और दुनिया को सिखला।